Once again, welcome my dear students. Let us start with the another topics of the same chapter, that is respiratory system in organism. In part 1, we discussed respiratory system of humans. Now we will discuss respiratory system in animals. Various animals are there, starting from unicellular to multicellular, and all are having different procedure for the respiration process that we are going to discuss in very short with limited examples. Generally कंपोजिशन तो आपको पता है कि almost 21% ऑक्सीजन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर, बट only and only about 0.5% oxygen is there in water at normal temperature. So first of all we will discuss how unicellular organism will take in oxygen and will give out carbon dioxide. So here the example is there, unicellular organism. बहुत सारे examples है unicellular के, say for example bacteria, amoeba, paramecium. Already you are knowing much more examples of unicellular organism. Each unicellular organism will respire through the diffusion process. They will directly take oxygen from either from atmosphere or from the water. Then this oxygen will diffuses into their body and carbon dioxide will diffuses out from their body. This is what a simple mechanism unicellular organism follows. Through the diffusion process, oxygen will move into their body and carbon dioxide will move out of their body. Understood? यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, तो आप देख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो. Now if we talk about the multicellular organism, multicellular organism have special organs that help in respiration. But multicellular organism भी तो बहुत है, starting from insect to humans. Many multicellular organisms are there. So we will discuss here along with the criteria. So first, through the skin, many multicellular organisms are there which is respiring through their skin. So here exchange of gases is taking place through their skin. But remember, skin कैसी होनी चाहिए? Moist skin. That moist skin is only able to exchange the gases. तो जो काम हमारे लंग में होता है, ह्यूमंस के लंग में होता है, वो सेम काम यहाँ पे मोइस्ट स्किन करेगी. सो कौन से एनिमल्स में ऐसा पाया जाएगा? सो फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स, लीचीज एक्सेट्रा. These organisms will respire through the moist skin. Understood? Then some animals are also there which can respire through their moist skin when they are in water, and they can also respire through the lungs when they are on land. मतलब they can live inside the water as well as they can also live on the land. Can you give me the name of those animals? Yes, they are amphibians like frogs, newts and salamander. ये एनिमल्स ऐसे जो दोनों में रह सकते, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं. बट व्हेन दे आर इनसाइड द वाटर, एट दैट टाइम दे आर यूजिंग देयर मॉइस्ट स्किन फॉर द रेस्पिरेशन. बट व्हेन दे आर ऑन द लैंड, एट दैट टाइम दे विल यूज देयर लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. आफ्टर दैट few animals are also there. For example, insect which can respire through the spiracle. Spiracle क्या है? These are the air holes. These are the air holes which are present on the skin. जैसे कि हमारे केस में nostrils है, means pore है, जहाँ से एयर अंदर जाएगी into the respiratory system. Same way, this spiracles are the air holes through which air moves into their body. So here air holes in the body are known as spiracles. अभी कैसे उसकी पूरी प्रोसीजर होती है वो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया है, तो आप देख सकते हो कि पहले एयर एंटर्स इनटू देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पाइरेकल्स विच आर देयर ऑन देयर बॉडी. व्हाट आर स्पाइरेकल? दीज आर द एयर होल्स. इनटू दिस स्पाइरेकल this O2 is absorbed, while from this spiracle itself carbon dioxide is sent out. Once O2 is entered into the body, then from spiracle that O2 is carried to the tracheal tubes. Listen me very carefully.
Once O2 is entered into the body through the spiracle, then it will carry it to the tracheal tubes, and then in that tracheal tube is surrounded with the blood capillaries. These tracheal tubes are surrounded with the blood capillaries. So from there this oxygen is diffusing inside the blood and carbon dioxide will diffuses out from the blood. Understood? डिफ्यूज़न तो सेम वे हमारे बॉडी में जैसे होता है, सेम वे डिफ्यूज़न भी यहाँ पे ऐसे ही होगा, मगर ऑर्गन्स अलग अलग है. अंडरस्टूड? एयर एंटर्स इनटू दिस बॉडी वाया स्पाइरेकल, then from the spiracle that oxygen rich air is carried to the tracheal tube, where in the tracheal tube is surrounded with the fine blood capillaries. वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मूव करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन सेंट बैक टू दी स्पाइरेकल, एंड देन फ्रॉम द स्पाइरेकल इट इज सेंट आउट फ्रॉम द बॉडी. दिस इज व्हाट द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन केस ऑफ insect through the air hole. Then next is through gills. Aquatic animals like fish, they can respire through the gills. They are having these gills as their respiratory organ. जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स. सेम वे फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स. These aquatic animals are using oxygen. कौन सा ऑक्सीजन? एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. दीज गिल्स आर मेड अप ऑफ फिलामेंट्स. ये गिल्स किससे बने हैं? फिलामेंट से बने. मैं पीछे आपको डायग्राम दिखाऊंगी कि कैसे गिल्स फिलामेंट से बना हुआ है. ठीक है, तो gills are made up of many thread-like filaments, and these gills are like a slit through which air enters into the respiratory organ. These filaments जो गिल्स में होते, गिल्स जिसे बना है वो फिलामेंट, these filaments are richly supplied with the fine blood capillaries. ठीक है, these are surrounded with the fine blood capillaries, और वहाँ फाइन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़न होगा ऑक्सीजन का. तो पूरी प्रोसीजर क्या है वो मैंने अगेन इसमें फ्लो चार्ट में ही एक्सप्लेन की है, दैट के वाटर में ऑक्सीजन होगा डिजोल्व्ड फॉर्म में, सो दैट वाटर एंटर्स इनटू देयर बॉडी वाया देयर माउथ. फ्रॉम माउथ दैट वाटर कंटेनिंग ऑक्सीजन फ्लोज ओवर द गिल्स. वो गिल्स के ऊपर से वो पानी जाएगा. Now gills are with the blood capillaries. So in the gills this oxygen is absorbed into the blood and carbon dioxide will be coming out from the blood. So this exchange is done in the gill itself, and that is why it is the respiratory organ. Understood? Now one more thing that you need to remember, that gills can be internal or it can be external. मतलब गिल्स अंदर की साइड भी हो सकते हैं और बाहर की साइड भी हो सकते हैं. So gills can be internal in some animals, aquatic animals like crab or fish, while it can be external in some amphibians. ठीक है, amphibians में वो external मिलेंगे आपको. While in case of few aquatic animals like crab and fish, you will be getting gills situated internally. Understood? So this is what about the respiration through gills that is done in case of aquatic animals like fish, and उसका respiratory organ कौन सा है? gills. Understood? Then through the lungs. Certain animals are there which are respiring through the lungs. But remember, lungs से respiration तभी possible है जब भी वो animals survive करते हैं land के ऊपर. So animals whichever is surviving on the land, or we can say living on the land, they can respire through the lungs. So for example, most of the mammals such as cats, dogs, monkeys and humans etc. These all are living on the land, so they respire through the lungs. लंग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है,
कि मैमल्स को छोड़ के एम्फीबियंस जब भी लैंड के, मतलब हमने डिस्कस किया था कि एम्फीबियंस कैन लिव ऑन वाटर एंड लैंड ऑन बोथ, ठीक है। तो जब भी एम्फीबियंस लैंड के ऊपर होते हैं एट दैट टाइम दे आर ऑल्सो ब्रीदिंग थ्रू दी लंग्स, ठीक है। सो दैट दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने डिस्कस किया थ्रू स्किन एंड लंग्स बोथ, थ्रू एयर होल्स दैट इज नॉन एज स्पाइरेकल्स, देन थ्रू गिल्स एंड थ्रू लंग्स, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। So here is the frog. We already discussed that frog is an amphibian, so it can live inside the water as well as on the land, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे frog is having a pair of lungs and it is having moist skin also. So moist skin कब वो यूज़ करेगा, तो जब भी वो पानी में होगा, और लंग्स कब यूज़ करेगा, जब भी वो लैंड के ऊपर होगा। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग। अंडरस्टूड इट प्रॉपरली? सी डायग्राम अच्छे से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। हियर इज़ द ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि थ्रू स्पाइरेकल दे आर ब्रीदिंग। सो यहाँ पे देखो ये स्पाइरेकल है, स्मॉल स्मॉल पोर्स, एंड दिस लॉन्ग वन इज ट्रेकियल ट्यूब, जहाँ पे स्पाइरेकल से O2 इनहेल करेगा, और फिर बाद में दिस O2 इज मूविंग डाउन टू दी ट्रेकियल ट्यूब्स विच इज़ हैविंग ब्लड कैपिलरीज, और वहाँ पे ये डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू एक्सचेंज आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? देन हियर इज़ द फिश विच इज़ अ एक्वेटिक एनिमल। सो हियर हमने डिस्कस किया था कि एक्वेटिक एनिमल्स आर रेस्पिरिंग थ्रू गिल्स, it is the respiratory organ of aquatic animals. So water flows in through the mouth, then here are the gills which is made up of thread like filaments, और वो फिर filaments through होके water flows over gills and then exchange will be taking place. Understood this diagram? तो इसको अच्छे से समझना, 3-4 बार देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Next we will discuss about the respiratory system in plants. Respiratory system which is found in animals and humans are too much complex, but that type of complex system is not found in plants, because plants possess a very simple system for the respiration process. But before that, many of us are thinking that plants also do respiration process. They don't do, they only do photosynthesis, but it is not fact. फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वो बहुत सारे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। उसमें से एक है रेस्पिरेशन प्रोसेस। अल्टीमेट प्रोसेस फॉर गेटिंग एनर्जी इज़ रेस्पिरेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए तो उसको रेस्पिरेशन परफॉर्म करना ही है, ठीक है। नॉट ओनली प्लांट बट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स रेस्पिरेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो हियर इट इज़ दैट कि प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस किसके लिए होता है? फूड प्रोडक्शन के लिए, एंड रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अंडरस्टूड दिस टू टर्म्स? फिर से मैं बोल रही हूँ कि प्लांट्स के पास ह्यूमन और एनिमल्स जैसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होती है। लंग्स, ट्रेकिया, नोज, ये सारी चीज़ें प्लांट के पास नहीं है, ठीक है। बट उसके पास बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है जिसके वाया वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले तो हम ये दोनों प्रोसेसेस हैं जो कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उसकी कंपैरिजन देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की है। दैट इज़ प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक शुगर प्लस ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। देन इन रेस्पिरेशन जो शुगर फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुआ, वो शुगर का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन शुगर विल बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। दिस एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, कैपिटल A, कैपिटल T, कैपिटल P, ATP दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सारा रिएक्शन होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आप देख सकते हो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में शुगर बनता है
तो वो शुगर रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी द डिफ्यूजन पैटर्न इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ए करके मैंने दिखाया है, ये जो सिंपल स्क्वायर दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगा अंदर की ओर और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगा बाहर, सेल से बाहर। ठीक है, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूजेस इनसाइड द सेल while oxygen diffuses outside the cell, while in case of respiration oxygen will diffuses inside the cell while carbon dioxide will diffuses outside the cell. Understood this diffusion pattern? See, एक्सचेंज तो ये दो गैस का ही होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बट एक्सचेंज किसका होगा, मतलब कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आपको पैटर्न मिलेगी जो कि यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया गया है कि कैसे कौन सा गैस अंदर सेल के अंदर जाएगा और कौन सा गैस सेल के बाहर जाएगा और कौन सी प्रोसेस में। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों की कंपैरिजन हमने देखी, एंड देन डिफ्यूजन पैटर्न देखी कि कौन सी प्रोसेस में कौन सा गैस अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा और कौन सा गैस सेल के बाहर जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी द डिफ्यूजन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द respiration process. So here are the parts of plant which are required for the respiration process. Three parts are there, that is stomata, lenticels and root pores. Stomata के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, already we discussed in chapter 1 कि what is the role of stomata, उसका structure क्या है वगैरह वगैरह। Then lenticels, this is new, कैसे बोला जाता है, lenticel, and then root pores। पहले तो हम स्टोमाटा का हम देख लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इट इज़ स्मॉल पोर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड दिस गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। दिस इज अबाउट द स्टोमाटा। देन नेक्स्ट इज लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। ठीक है, ये भी स्मॉल पोर ही है, स्टोमाटा भी स्मॉल पोर है, मगर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो उनकी लोकेशन। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के, ग्रीन पार्ट मुझे अच्छे से सुनना, जो भी पार्ट प्लांट के पार्ट ग्रीन कलर के है वहाँ पे आपको स्टोमाटा मिलेगी, और नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ पे आपको लेंटिसेल्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, बट बोथ आर स्मॉल पोर्स। These lenticels are also found in fruits like pear and apple. अगर आपने ये फ्रूट्स देखे तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी सरफेस पे ब्लैक डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, दैट ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट स्मॉल पोर्स, दैट इज लेंटिसेल्स। देन नेक्स्ट इज रूट हेयर। दिस रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है चैप्टर 1 में, क्या है इसका फंक्शन, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अभी ये भी तो एक प्रोसेस है, उसके लिए भी उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तभी तो ये प्रोसेस कर पाएंगे, तभी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो एनर्जी के लिए वो भी रेस्पिरेशन करेंगे। सो रूट्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। दिस O2 फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग, बिकॉज रूट्स तो सॉइल के अंदर हो गए, दे आर बीनीथ द सॉइल, तो दे कैन नॉट डायरेक्टली ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, तो फ्रॉम वेयर दे विल गेट द ऑक्सीजन। सो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में कि सोइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होती है, एंड दैट गैप इज फिल्ड विद द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दैट गैप इज फिल्ड विद द एयर हैविंग ऑक्सीजन। सो दिस रूट विल टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम दैट गैप इन विच एयर इज देयर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन का ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, सो हियर O2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो दिस इज अबाउट द रूट पोर्स। ठीक है, फ्रॉम दैट पोर्स दिस रूट्स विल टेक अप oxygen for the respiration process. So I hope these three are clear, that is stomata, lenticels and root pores.
अगर आपको ये ऐसे ही याद रखना है, ऐसे चार्ट बना के आपको याद रखना है, तो दिस वुड बी सिंपल वे टू रिमेंबर दिस थिंग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और अगर ऐसा एग्जाम में कुछ पूछा भी जाता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स ओनली। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, लिखने में नहीं, ये समझने की बात कर रही हूँ मैं, कि प्लांट्स जनरली जो है वो पूरा दिन रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, पूरा दिन पूरी रात रेस्पिरेशन करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस कब होगा? सो व्हेन दे विल गेट लाइट, तभी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली फोटोसिंथेसिस विल बी टेकिंग प्लेस। प्रेजेंस ऑफ लाइट डजंट मीन ओनली सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में भी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और एल्स आपके घर पे जो येलो बल्ब होता है ना, अगर वो भी आप प्लांट के ऊपर रख दोगे फिर भी वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो एनी हाउ दे रिक्वायर सोर्स ऑफ लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू बी डन। So whenever light is given, they will start photosynthesis, and in absence of light, photosynthesis will be stopped. But respiration तो continue ही रहेगा, दिन हो या रात हो, respiration will be continue. Understood this point? What we discussed different parts of plant through which they do respire. उसमें स्टोमाटा, लेंटिसेल्स, रूट हॉर्स। स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स दोनों स्मॉल पोर्स है, बट लोकेशन उसकी डिफरेंट है कि स्टोमाटा इज फाउंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, कि जो भी उसका पार्ट ग्रीन कलर का होगा वहाँ पे स्टोमाटा मिलेगा आपको, एंड जो भी नॉन ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पे आपको लेंटिसेल्स मिलेगा, ठीक है। एंड रूट पोर्स है वो रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन कंटेंट लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सी द डायग्राम, जो हमने स्टोमाटा लेंटिसेल के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे दिखाया है। दिस इज़ व्हाट द स्टोमाटा, ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले से पता है। दिस इज फर्स्ट वन इज ओपन स्टोमाटा एंड सेकंड वन इज क्लोज स्टोमाटा। देन आप ये दूसरी इमेज देखो, जो कि एक ट्री की बार्क है, वहाँ पे ऐसे आपको स्मॉल आपको डॉट दिख रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट लेंटिसेल। देखो यहाँ पे वो एनलार्ज करके भी आपको दिखाया है, ये लेंटिसेल है जिसमें से गैसियस एक्सचेंज होगा। फिर ये यहाँ पे एक फ्रूट का एग्जाम्पल दिया है, पियर, तो उसमें आप देखो वो भी आपको एनलार्ज करके दिखाया है कि जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना, वो कुछ नहीं बट वो लेंटिसेल ही है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि स्टोमाटा, लेंटिसेल क्या है। अंडरस्टूड एवरीवन? डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा और डिफरेंस भी आप क्लियर कर पाओगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोमाटा एंड लेंटिसेल। बट इतना याद रखना है कि ग्रीन पार्ट में स्टोमाटा होगा एंड नॉन ग्रीन पार्ट में lenticels. Now we will see one activity to prove that stomata is helping in respiration process. So aim of this activity is to demonstrate that plants respire through stomata. Materials required for this is petroleum jelly, a leafy plant. कोई भी leafy plant ले लो आप, for example जेरेनियम, डेलिया और रोज़ प्लांट, कोई भी चाहिए हमें, तो आप रोज़ प्लांट इजीली अवेलेबल होता है तो आप वो ले सकते हो। देन व्हाट आर द मेथड्स फॉर दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप द प्लांट इन द डार्क फॉर फ्यू डेज सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेकिंग प्लेस, ठीक है। ऐसी ही एक्टिविटी हमने चैप्टर 1 में भी देखी थी, टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड, टू प्रूव दैट दिस क्लोरोफिल इज नीडेड, ठीक है। ऐसे ही सेम एक्टिविटी है। देन सेकंड स्टेप इज choose 2 leaves and coat their underside with the petroleum jelly. हमने underside क्यों उसको कोट किया? Because stomata are present on the underside of the leaves, ठीक है, and that is the main reason why we have chosen underside for coating. Then third step is place the plant on a sunny window sill for a week and observe. फिर हमें कहाँ प्लांट को रखना है? ऐसे विंडो के पास पे रखना है जहाँ पे सनलाइट इनफ अमाउंट में आती है, फॉर अ वीक, एंड देन वी विल ऑब्जर्व द रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? दैट द 2 लीव्स बिगिन टू डाई एज टाइम गोज बाय। मतलब कि जैसे जैसे दिन आगे जाते हैं ऐसे ऐसे वो जो हमने 2 लीव्स हमने चूज़ किए थे और जिसको कोट किए थे वो मर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? दैट कि एज स्टोमाटा आर कवर्ड बाय द जेली देयर इज नो वे फॉर एयर टू एंटर इनटू द लीव्स, एंड विदाउट एयर प्लांट्स
और दैट पर्टिकुलर लीफ कैन नॉट रेस्पायर, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी की एब्सेंस में वो लीफ मर जाएंगे, दे विल डाई एज डे पासेस. So understood this activity. So this activity confirms that stomata is required for the gases exchange, and this gases exchange is required for the respiration process. Understood? After that we have also discussed that कि in respiration process एनर्जी तो इवॉल्व होती ही है, बट उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है. हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द एक्टिविटी दैट विल शो दैट कि हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड. तो एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट टू थर्मोस फ्लास्क, सीड्स, फॉर्मेलिन और कार्बोलिक एसिड, कॉटन वूल एंड 2 थर्मोमीटर्स. हमें इतना चाहिए. एंड आप देख सकते हो डायग्राम में कैसे असेंबली पूरी सेट की है. द सेम वे वी विल सेट अप असेंबली. देन मेथड में क्या है, फर्स्ट स्टेप, तो यू हैव टू टेक 2 थर्मोस फ्लास्क एंड मार्क देम 1 and 2. मतलब उसके ऊपर मार्किंग कर देनी है 1 and 2 विद द हेल्प ऑफ मार्कर, ग्लास मार्कर. देन सेकंड स्टेप, टेक अ ग्लास फुल ऑफ सीड्स एंड सॉक देम इन वाटर फॉर मोर देन 24 hours. फिर क्या करना है, हमें एक ग्लास भर के सीड्स लेने हैं और उसको सॉक करने हैं पानी में 24 आवर्स से ज़्यादा. देन डिवाइड द सीड्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप. फिर सॉक किए हुए जो सीड है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो. देन बॉयल वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीड्स एंड देन वॉश देम विथ डाइल्यूट फॉर्मेलिन और कार्बोलिक एसिड टू प्रिवेंट डिके. ठीक है, अभी 2 ग्रुप में आपने डिवाइड कर लिया. फिर एक ग्रुप के सीड को बॉयल करो, किसमें, तो फॉर्मेलिन में और कार्बोलिक एसिड में, जिसकी वजह से उनका डीके स्टॉप हो जाए. देन पुट द लाइव जर्मिनेटिंग सीड इन फ्लास्क 1 एंड द किल्ड वन इन फ्लास्क 2. मतलब कि पहले फ्लास्क में वो सीड्स रखने हैं जिसको हमने बॉयल नहीं किया है, और दूसरे में हमें वो सीड्स रखने हैं जिसको हमने बॉयल किया है. अंडरस्टूड? क्लियर द मेथड? Then after that you have to insert a thermometer in each flask and plug their mouth with cotton wool. फिर उसके बाद दोनों जार में आप रख दो थर्मोमीटर और फिर उसको कवर कर दो, उसका माउथ जो होता है उसको कवर कर दो. ठीक है, दिस इज़ व्हाट द मेथड. उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि थोड़े घंटों के बाद क्या होता है उसमें. आपको ये थर्मोमीटर का रीडिंग क्या दिखाएगा. ठीक है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. तो ऑब्जर्वेशन में है कि आफ्टर फ्यू आवर्स द थर्मोमीटर इन फ्लास्क 1 शोज हायर रीडिंग. मतलब वो मर्क्यूरी है वो इट गेट्स रेजेज अप. ठीक है, वो रीडिंग दिखाएगा, हायर रीडिंग दिखाएगा. वाइल इन थर्मोमीटर विच इज़ देयर इन फ्लास्क नंबर 2 डज नॉट शो एनी राइज इन टेम्परेचर. वो कोई राइज नहीं दिखाता है. इट मीन्स दैट कि जो आपने फर्स्ट नंबर के फ्लास्क में जो सीड्स रखे थे, जर्मिनेटिंग सीड्स रखे थे, दे आर इन लिविंग कंडीशन. एंड कोई भी लिविंग चीज़ है वो रेस्पिरेशन करती है, और रेस्पिरेशन में हीट इवॉल्व होती है. एंड थर्मोमीटर क्या मेज़र करेगा, कोई एनर्जी लेवल तो मेज़र करता नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेचर मेज़र करेगा. और हमें पता है कि अगर हीट ज़्यादा इवॉल्व हुई तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. ठीक है, एंड दैट टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड वाया दी थर्मोमीटर. और उसी की वजह से हमें फर्स्ट फ्लास्क में हायर रीडिंग दिखा. वाइल इन अनदर फ्लास्क सीड्स तो हमने बॉईल करके उनको मार डाला, तो अभी डेड सीड्स क्या कुछ रेस्पिरेशन करेंगे? नहीं करेंगे. अगर रेस्पिरेशन नहीं हुई तो कोई हीट इवॉल्व नहीं होगी, और हीट के एब्सेंस में टेम्परेचर तो रेज होने से रहा, तो फिर थर्मोमीटर क्या मेज़र करेगा? कुछ भी तो नहीं है टेम्परेचर में रेज, तो वो कुछ मेज़र नहीं करेगा. इसी वजह से उस दूसरे फ्लास्क में थर्मोमीटर में कुछ रीडिंग हमें नहीं मिलता है. अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी? ये एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि रेस्पिरेशन के एंड में एनर्जी तो रिलीज होती है, मगर साथ में हीट भी इवॉल्व होती है. अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी क्लियरली प्रूव्स दिस फंडा. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मगर उससे पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करनी है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नाउ व्हाई इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? बिकॉज इट इज डन outside the cell. This breathing process is done outside the cell, and that is why it is known as external respiration, while the respiration process which is done inside the cell is known as internal respiration, or we can say सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें से एनर्जी लिबरेट होगी वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाई दे आर गिवन नेम सो? बिकॉज दिस प्रोसेस, दिस एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस इज डन इनसाइड द सेल, एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Now as far as internal or cellular respiration is concerned, it is of two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Which two types? Aerobic and anaerobic respiration. Remember their spelling too, aerobic and anaerobic. Now we have to discuss these two types, that is anaerobic respiration and aerobic respiration in detail. Now let us see what they are. See here, एरोबिक रेस्पिरेशन वी विल डिस्कस, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस, व्हाट डज दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस मीन? इट मीन्स दैट जो भी शुगर है, हमने रेस्पिरेशन में डिस्कस किया था कि शुगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? शुगर ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, दिस शुगर इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज अल्कोहल और एसिड। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। So we can define the same process as that conversion of sugar into either alcohol or acid. That process is known as fermentation process. ठीक है, understood this fermentation process? ठीक है, तो fermentation process यहाँ पे तीन टाइप की fermentation process होगी as their फाइनल प्रोडक्ट इज कंसर्न। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होगा किसमें से? शुगर में से। शुगर में से अल्कोहल बनेगा तो उसको बोला जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है? तो कि शुगर कन्वर्ट होगी लैक्टिक एसिड में, वैसे फर्मेंटेशन को बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन में मतलब कि एक से ज़्यादा एसिड का मिक्सचर रहेगा, उसको बोला जाता है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। हमें मेनली फोकस करना है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ऊपर एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ऊपर। अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया? इसमें आपको फर्मेंटेशन की डिफाइन याद रखनी है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू आइदर अल्कोहल और एसिड। ठीक है, रिमेंबर दिस डेफिनेशन प्रॉपरली। और उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में शुगर में से अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में से शुगर में से लैक्टिक एसिड बनेगा। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी दिस टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इन डिटेल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। See here is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. ठीक है, अगर आपको ये डिफरेंस ऐसे ही याद रखना है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई शॉर्ट नोट पूछा जाए कि राइट अ नोट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें जितने पॉइंट दिए हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स है। तो 6 पॉइंट ऐसे ही आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख दो तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो हाँ चलो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, ये दोनों इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंपल्सरी चाहिए, व्हाइल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन विल बी टेकिंग प्लेस। देखो दोनों में डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन while anaerobic respiration doesn't require presence of oxygen, or you can say it requires absence of oxygen. Understood? Then second point is in aerobic respiration complete oxidation of glucose taking place. ठीक है, ग्लूकोज की जगह पे आप शुगर भी लिख सकते हो और ऑक्सीडेशन की जगह पे आप ब्रेक डाउन भी लिख सकते हो। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और sugar is done, while in case of anaerobic respiration
द ग्लूकोज मोलिक्यूल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड और पार्शियली ब्रोकन डाउन, ठीक है, और इनकम्प्लीट यू कैन से, तो इट इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, विच वन, तो ग्लूकोज मोलिक्यूल। देन थर्ड इज द एंड प्रोडक्ट, मतलब कि एट द एंड ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट carbon dioxide and water as an end product, while in case of anaerobic respiration you will get either alcohol or lactic acid at the end of the reaction, that is anaerobic respiration. You may get carbon dioxide, you may not get carbon dioxide as an end product. देखो अगर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट में मिलेगा, अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट का मतलब है कि फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, दैट मीन्स एंड प्रोडक्ट, कि जो एरो के लेफ्ट साइड लिखा हुआ होता है वो है एंड प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। देन इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन लॉट्स ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। देखो यहाँ पे एटीपी कितने दिए हैं, टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज विल बी रिलीज्ड, ठीक है, एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन स्मॉल एनर्जी इज लिबरेटेड, स्मॉल में कितने एटीपी रिलीज होंगे, ओनली 2 एटीपीज। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर द डिफरेंस कि इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज आर रिलीज्ड, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा तब आपको इतनी एनर्जी मिलती है, कितनी, 38 एटीपी इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, while in case of anaerobic respiration after the breakdown of glucose molecule, partial breakdown of glucose molecule, you will get only 2 ATPs, मतलब comparatively it is very low amount of ATP. Then next, in case of aerobic respiration it occurs in plants and animal cell, मतलब प्लांट के सेल में भी एरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा और एनिमल के सेल में भी एरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा। बट दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मेनी ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में सिर्फ ये मसल सेल ऐसे हैं जिसमें आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा। ये मसल सेल को छोड़ के बाकी जितने भी ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में सेल है सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मगर ये मसल के सेल में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है, वो भी कभी कभी। जब भी हम एक्सरसाइज करके आते हैं तब हमें बहुत थकान महसूस होती है, ठीक है। एट द टाइम वी आर फीलिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। हम बोलते हैं कि मेरी सांस फूल गई, इट मीन्स के ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कि आपको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी आपके मसल्स को तो काम करना ही, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स तो कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में है, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करेगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एनर्जी तो हमें एनी हाउ चाहिए, तब वो क्या करेगा मसल सेल के, ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में है ही, उसके पास भी है मसल सेल के पास, तो वो ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन करके उसमें से एटीपी रिलीज करता है, मतलब कम करेगा मगर फिर भी हमें एटीपी की सप्लाई मिलेगी। सो एट दैट टाइम दिस मसल सेल्स अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे लास्ट पॉइंट में आपको इक्वेशन के फॉर्म में भी आपको दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि C6H12O6 इट रिप्रेजेंट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी किलो कैलोरी के फॉर्म में दी है, मगर वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एनर्जी याद रखना, ठीक है। ऐसे याद रखोगे फिर भी चलेगा। और यहाँ पे उसका जो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है दैट इज C6H12O6, उसकी जगह पे आपको सिर्फ ग्लूकोज लिखना है या फिर शुगर लिखनी है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कि आपको दिया है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, इट पार्शियली ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको अल्कोहल का फॉर्मूला दिया है, मगर वो फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, आप सिर्फ वहाँ पे लिखोगे अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अगर अल्कोहल फॉर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा उसके साथ,
और अगर लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको एंड प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। तो सेम वे यहाँ पे किलो कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी दी हुई है, तो इसको छोड़ के आप सिर्फ एनर्जी लिखोगे, ये डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आफ्टर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक, let us now compare the aerobic respiration with the combustion process। combustion process मतलब क्या है? बर्निंग प्रोसेस, जो हम बाहर करते हैं ना, जैसे कि पेपर जलाना या फिर वुड जलाना, दैट इज़ व्हाट द combustion process। so let us start the comparison between these two, that is aerobic respiration and combustion। तो फर्स्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट एनर्जी इज गिवन आउट ग्रेजुअली, मतलब कि स्लोली आपको एनर्जी मिलती है, एक साथ नहीं मिलती है। वाइल इन केस ऑफ कंबस्टन एनर्जी इज गिवन आउट सडनली, मतलब तुरंत ही सडनली द एनर्जी, ऑल एनर्जी इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड। Then in aerobic respiration energy is given out in the form that can be used by the organism। तो याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म होती है, बट इट इज़ जनरली फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज़ कैपिटल A, कैपिटल T एंड कैपिटल P। तो वो फॉर्म में प्रोड्यूस होती है जिसे ऑर्गेनिज्म इजीली यूज़ कर सकता है। वाइल इन केस ऑफ कंबस्टन एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ठीक है, जो कि हम ट्रैप नहीं कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन द बर्निंग प्रोसेस, ठीक है, उसमें कैसे फटाफट से एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में एंड लाइट के फॉर्म में। Then in aerobic respiration energy is stored inside the body in the form of ATP, that is adenosine triphosphate। This adenosine triphosphate is energy rich molecule which can be used whenever it is needed। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं ATP का फुल फॉर्म आपको दूंगी डिफरेंस में, तो ये रहा डिफरेंस और ये रहा ATP का फुल फॉर्म, जो कि आपको याद रखना है अच्छे से। What is the full form of ATP? That is adenosine triphosphate। और शॉर्ट में जब भी लिखो तब ATP, तीनों की तीनों लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर होती है ATP में, जिसकी वजह से हमें जब भी एनर्जी की ज़रूरत है, एट दैट टाइम द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड टू रिलीज एनर्जी। वाइल इन केस ऑफ कंबस्टन एनर्जी इज़ नॉट एट ऑल स्टोर्ड एज ATP, क्योंकि हमने आगे ही डिस्कस किया था कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ठीक है, और इजीली इट विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे कोई ATP के फॉर्म में स्टोरेज का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन। देखो बोथ रिक्वायर्स ऑक्सीजन, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए तभी होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, वाइल कंबस्टन इज डन आउटसाइड द सेल। मतलब अगर हम बोले तो एनवायरमेंट में होता है, वो हमारे मतलब देखो अगर हमारी बॉडी के बाहर ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी मिलती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलीज़ होती है, वाइल कंबस्टन में सडनली रिलीज़ हो जाती है। जो भी एनर्जी का फॉर्म प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो ऐसा होता है जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर सके। अगर मेरे बॉडी में ATP प्रोडक्शन हुआ है तो सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, आप यूज़ नहीं कर सकते हो। वेल इन केस ऑफ कंबस्टन एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। देन इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। व्हाट इज ATP? दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल विच विल गिव एनर्जी वेन एवर इट इज नीडेड। वाइल इन कंबस्टन एनर्जी कभी भी ATP के फॉर्म में स्टोर्ड नहीं होती है, बिकॉज वो तो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिफरेंस वेल, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना। 3 ही पॉइंट है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, मगर वो डिफरेंस नहीं है, वो कॉमन पॉइंट है ये दोनों में कि बोथ रिक्वायर्स ऑक्सीजन। हाँ, एक डिफरेंस का पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज डन इनसाइड द सेल वाइल कंबस्टन इज डन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और वी कैन से आउटसाइड इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हो इफ़ यू विश, अदरवाइज ये 3 डिफरेंस इनफ है, इसको याद रखो। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द एक्टिविटी about the presence of oxygen is required during the aerobic respiration. So here is the activity. The aim of this activity to demonstrate that oxygen is required during aerobic respiration.
We require materials like a big beaker, a small beaker, a test tube, a cork with a hole, U-shaped tube, colored water, perforated sheet or wire mesh, germinating piece, soda lime and water. These are the requirements. मेथड में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब और उसमें आपको थोड़ा सोडा लाइम बॉटम पे, यू हैव टू फिल द सोडा लाइम एट द बॉटम. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फिक्स अ वायर मेश अ लिटिल अबव द सोडा लाइम. आपने नीचे बॉटम पे सोडा लाइम रखा, अभी उसके ऊपर एक छोटी सी वायर मेश अरेंज करो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है. मगर ध्यान रखना है वायर मेश सोडा लाइम के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. देन प्लेस जर्मिनेटिंग सीड्स और पीस अगर आपने लिए हैं तो जर्मिनेटिंग पीस ऑन द मेश. फिर आपने जो वायर मेश रखी और परफोरेटेड शीट रखी. परफोरेटेड शीट का मतलब कि अ शीट विच इज़ हैविंग होल्स, वो जो रखी है उसके ऊपर आपको जर्मिनेटिंग पीस रखने हैं, ठीक है. बट मेक श्योर दिस जर्मिनेटिंग पीस शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सोडा लाइम, इतना हमें ध्यान में रखना है. देन सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज shown in the picture. मतलब कैसे, तो the water bath helps to maintain the temperature and does not affect the outcome of the experiment. मतलब हमें पूरी वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमें एक वाटर बाथ में रखना है. वाटर बाथ कैसे बनाया, तो एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया और नीचे से हीट दी, ठीक है. फिर वो बॉइल्ड वाटर में हमने रख दी वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने सोडा लाइम एंड जर्मिनेटिंग सीड्स रखे हैं. अंडरस्टूड. Then you have to put the cork on the top of the test tube, ठीक है, जिसमें हमने सोडा लाइम एंड सीड्स रखे हैं उसको, उसके ऊपर एक कॉर्क हमें मतलब वो उसको ढक देना है अच्छे से. देन ये जो हमने यू शेप्ड यहाँ पे डिस्कस किया था, यू शेप्ड ट्यूब, तो ऐसे आपको यू शेप्ड ट्यूब अरेंज करनी है टेस्ट ट्यूब में और उसका दूसरा एंड होना चाहिए एक दूसरे स्मॉल बीकर में और वो बीकर में हमें भरना है colored water. Understood this assembly? Then see what happens to the level of colored water in the separate beaker. फिर हमें देखना है कि जो हमने सेपरेट बीकर में कलर्ड वाटर रखा है उसमें क्या होता है. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, तो ये ऐसा होगा द कलर्ड वाटर. ऑब्जर्वेशन ये है कि कलर्ड वाटर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड इन द नैरो ट्यूब आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद जो कलर्ड वाटर है हमने रखा है बीकर में, वो ट्यूब रखे ना उसके अंदर, उसमें ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है. यहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा. उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो सोडा लाइम क्या करेगा, तो पहले तो हमें देखो जर्मिनेटिंग सीड्स है तो वो रेस्पिरेशन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है. तो वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करेंगे एंड दे विल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दिस सोडा लाइम विच वी हैव केप्ट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दिस सोडा लाइम विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है. ऊपर आपको खाली जगह दिख रही है, वहाँ पे कुछ नहीं है तो एयर तो है ही, एयर में ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा. ऑक्सीजन ले लेगा ये जर्मिनेटिंग सीड्स while कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सोडा लाइम विच वी हैव प्लेस्ड एट द बॉटम, ठीक है. उससे क्या होगा कि जो दोनों की अमाउंट कम हो रही है, ऑक्सीजन सीड्स ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है सोडा लाइम, मतलब अंदर एयर का प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है. समझ में आ रहा है, एयर का प्रेशर कम हो रहा है. एंड ड्यू टू दिस लो एयर प्रेशर क्या होगा, तो वो दूसरे ये जो हमने यू शेप्ड ट्यूब हमने कनेक्ट की है ना, वहाँ पे ये प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ये दूसरा एंड जो हमने कलर्ड वाटर में रखा है, वो कलर्ड वाटर इमीडिएटली इट गेट्स पुल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर. प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ये कलर्ड वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड ड्यू टू दैट रीज़न दिस कलर्ड वाटर इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो व्हाट वुड बी द कंक्लूजन, दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन. इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन. विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. आई होप दिस एक्टिविटीज with the completion of aerobic and anaerobic respiration, the main content of these chapters are over.
We already discussed everything. Now let us see the keywords which are given in your textbook. See, these keywords we have to write down in the Fairnot book of biology. Understood all? Now here the keywords of breathing, stomata, aerobic respiration and anaerobic respiration are given. ठीक है, ये तो आप लिखोगे, but other than this, other keywords which I am going to show you, that also you will write down in the FNB. So here are those keywords, extra one जो कि आप ये भी लिखोगे, मगर इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं, जो नए हैं those only you will write. Say for example, breathing is there in your book. ठीक है, आपकी बुक में जो की टर्म्स दिए हैं उसमें breathing है, तो that breathing you will not copy. Then respiration is not given, so that you have to write down. Then spiracles are also not given, so that also you will write down. Diaphragm you will also write down. And last three, that is aerobic, anaerobic respiration and stomata. These are already given in your textual keywords. ठीक है, तो जो रिपीट हो रहे हैं वो दूसरी बार नहीं लिखोगे, मगर जो नए हैं दैट इज रेस्पिरेशन, स्पायरेकल्स एंड डायफ्राम, दैट यू विल राइट. Understood? I hope this is clear to you. With this we completed this chapter, that is respiratory system in organism. I hope this is clear to you, and if you will watch this both the parts of the video, that is part 1 and part 2 or 3 times, then it will be more understood to you, because ये एक तो थोड़ा difficult chapter है, plus it is important for 10th standard also, because 10th में same chapter आएगा जहाँ पे आपको ये फिर से पढ़ना है. ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ये वीडियो दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बोथ द पार्ट्स यू हैव टू वॉच एटलीस्ट 2 or 3 times टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स प्लस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड respiration. ठीक है, and their steps, differences whatsoever are there, that we discussed in part 1, while in part 2 we discussed respiratory system in animals, respiratory system in plants, and then types of respiration. Understood? So please watch this video 2 or 3 times to understand more betterly. What we studied in this chapter? Let us have a look at the summary part. We studied first of all what is respiration and what is breathing. Then we studied respiratory system of human. Then respiratory system in animals, and last respiratory system in plants. After that we discussed types of respiration process. So first of all we start with the respiration. The respiration is the process of releasing energy from the breakdown of food, or we can say oxidation of food. There are two main types of respiration, that is aerobic and anaerobic. This aerobic respiration requires the presence of oxygen, while this anaerobic respiration doesn't require the presence of oxygen, or we can say it requires absence of oxygen. Plants also respire with the help of tiny holes called stomata, but these stomata are present on the green part of the plants. Then what about non-green plants? So non-green parts also respire with the help of lenticels, and roots respire through the root pores. Then animals such as frogs and snakes respire through their skins. Fish and crabs respire through the gills, and insects mostly respire through the spiracles. Then the respiratory system of human comprises of nose, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. We have seen each and every organ in detail. What are the functions and how the process is actually taking place inside this organ, that also we discussed. Then afterwards breathing. Breathing is an essential step for the respiration process, because respiration process begins with the breathing, because this breathing only brings oxygen from the atmosphere into our body. This breathing process involves 2 steps, that is inhalation and exhalation. Inhalation के थ्रू एयर, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर हमारी बॉडी में एंटर होती है, एंड मीनवाइल दैट ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द ईच एंड एवरी सेल. वाइल एक्सहेलेशन में क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल आउट और पुश्ड आउट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द ब्रीदिंग प्रोसेस. एंड द डायाफ्राम विच इज अ मस्कुलर ऑर्गन इज एक्चुअली हेल्पिंग फॉर दिस प्रोसेसेस, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड. Now let us see the exercise portion of the chapter. The first is blank.
तो फर्स्ट ब्लैंक इज अ सीरीज ऑफ डैश रिएक्शन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो उसमें क्या आएगा, फिजिकल और केमिकल. So that is releasing energy through the oxidation of food is what actually it is a respiration process, and respiration is a chemical process. So here answer is chemical. Then when the diaphragm dash oxygen rich air is taken into lungs, तो diaphragm क्या होगा कि जिसकी वजह से oxygen rich air अंदर आएगी, so contract. तो correct answer is contract. The windpipe is made of several ring like structures held together by dash. उसमें आंसर आएगा cartilage. Then plant roots typically take in dash available in small spaces between soil particles and give off dash. तो ये respiration process दिखा रहा है. तो respiration में always ऑक्सीजन की एंट्री होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट होगी. तो फर्स्ट ब्लैंक में करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. देन डैश रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. एफिशिएंट फॉर्म मतलब कि विच रिलीजेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिलीजेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? यस, इट इज एरोबिक. तो हियर करेक्ट आंसर इज एरोबिक. आफ्टरवर्ड्स MCQs आर देयर. The first MCQ is which of these are like slits and are made up of thread-like structures. तो उसमें correct answer है gills. Then which of these carries the inhaled air into tiny air bags in human beings? तो उसमें correct answer है bronchioles because at the each smallest bronchiole alveoli are there. Which of these carries oxygenated blood from the lungs to the heart? तो याद करो जो हमने लंग्स में डिस्कस किया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. तो इसमें करेक्ट आंसर है पल्मोनरी वेन. देन विच ऑफ दिस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस बिकॉज रेस्पिरेशन के एंड में एनर्जी का प्रोडक्शन भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है एंड वाटर भी प्रोड्यूस होता है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज D, that is all of this. Then which of these is formed as a result of anaerobic respiration? तो anaerobic respiration में भी एनर्जी का प्रोडक्शन भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गेटिंग इवॉल्व एंड इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो इवॉल्व. तो हियर अगेन द सेम D ऑप्शन विल कम जिसमें एनर्जी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और इथाइल अल्कोहल भी है. देन सिक्स्थ MCQ is which of this refers to breathing? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन. Then which of these do amphibians use to breathe in air or on land? तो whenever amphibians are there on land, how do they breathe? तो with the help of lungs. तो correct option is D, lungs. Then which of these helps to pull in oxygen rich air into the lungs? तो उसमें correct answer है option number A, that is expansion of the diaphragm. Then ninth one is why do farmers plough the soil? क्यों उन्हें प्लॉइंग की ज़रूरत पड़ती है? तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू इंक्रीज द रूट रेस्पिरेशन. देन टेंथ इज विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस. तो दैट वुड बी आंसर. देन नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो उसमें गिव 2 एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग. तो फर्स्ट यहाँ पे देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है आंसर में डिफर, मतलब कि अगर आप दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म के नाम लिखना चाहते हो विच इज belonging to same category, then you can write. It is not compulsory for you to write the same answers which I wrote. The first one is animals in which exchange of gases takes place directly from the water or air through the diffusion. तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है. तो कोई भी 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम लिख दो, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम. देन एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स. तो स्पाइरेकल से ब्रीथ कौन करेगा? तो इंसेक्ट्स आर ब्रीदिंग थ्रू स्पाइरेकल. तो कोई भी 2 इंसेक्ट के नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल आई रोट ग्रास हॉपर एंड एंट. देन थर्ड वन इज एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन एज वेल एज देयर लंग्स. तो ओवर हियर एम्फीबियंस विल कम. सो राइट एनी 2 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई रोट फ्रॉग एंड सैलामंडर. देन फोर्थ वन इज ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर एनारोबिकली. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जनरली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर गोइंग फॉर द एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो एक तो बैक्टीरिया लिखो और दूसरा है फंजाई. तो दिस फंजाई इज ऑल्सो रेस्पायरिंग थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. एक्चुअली वो प्रोसेस को मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बोला था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है एंड यीस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस. इन डिटेल अबाउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस यू विल लर्न इन स्टैंडर्ड 8.
आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर देयर। अभी देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट में उसका आंसर लिखा है, तो सेम आंसर आप फेयर नोटबुक में आपको नहीं लिखना है। फेयर नोटबुक में लिखने के लिए मैं एक PDF आपको भेजूंगी, उसमें से आप आंसर कॉपी करना। ये क्या है कि आपको हिंट दी है कि ये क्वेश्चन के आंसर में ये पॉइंट तो आना ही चाहिए, और एल्स अबाउट दिस पॉइंट यू हैव टू डिस्कस इन डिटेल। तो फर्स्ट इज डिफाइन रेस्पिरेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड अ केमिकल प्रोसेस। तो पहले तो आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद उसको केमिकल प्रोसेस क्यों बोला जाता है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए उसको केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। देन सेकंड वन इज हाउ डज द डायफ्राम हेल्प्स इन पंपिंग एयर। सो थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम इट हेल्प्स इन पंपिंग द एयर। देन व्हाट इज हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सॉरी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड। तो कैसे फॉर्म होगा, तो कि ब्लड में RBC है, तो RBC में हीमोग्लोबिन करके एक पिगमेंट है, तो ऑक्सीजन विल बाइंड विद दैट हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेड एज HbO2. HbO2 मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स दैट इज रीचिंग टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर body. Means it will that hemoglobin by combining with oxygen, it supplies oxygen to each and every cells of our body. Then fourth one is why do roots of plants need to respire? So definitely to get energy they will do respiration process. आफ्टर दैट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर देयर। तो उसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अ फिश रेस्पायर इन वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर लिखना है, तो यहाँ स्टार्ट करो कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इनटू द वाटर, and then how these aquatic animals respire through the gills. What is gill? It is a slit which is made up of thread like structure called filament. Then उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस उसकी एक्सप्लेन करनी है, that when water flows through the mouth of the fish it go through these gills, and these gills are made up of filaments. So this water is also moving through the filament. Then these filaments are wrapped with the fine network of blood capillaries, and exactly there diffusion is taking place. Diffusion of oxygen is taking place inside the blood, and carbon dioxide will diffuses out from the blood. So that process you have to write. वो आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था फ्लो चार्ट, आप वैसे भी फ्लो चार्ट में लिख सकते हो. Then third one is second one is describe how exchange of gases takes place inside the human respiratory system. तो यहाँ पे आपको अल्वियोली की टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करना है. टेक्स्ट बुक में आपको जो एक टॉपिक करके दिया है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. तो पहले आपको पहले स्टेप में लंग्स का डायग्राम करके आपको बोला गया है कि हाउ फ्रॉम नोज टू अल्वियोली एयर इज रीचिंग. आफ्टर दैट अल्वियोली का डायग्राम दिखाया है, इट इज़ कवर्ड विद द फाइन कैपिलरीज ऑफ ब्लड. एंड देन थर्ड डायग्राम में आपको ब्लड में उसका डिफ्यूज़न कैसे होता है कैपिलरीज थ्रू, तो ये इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा. देन थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट द इक्वेशन टू शो बोथ द प्रोसेस. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है. जो आपको PDF भेजा जाएगा उसमें डिफरेंस के फॉर्म में नहीं होगा, उसमें तो पैराग्राफ के फॉर्म में ही होगा. बट इट इज़ बेटर टू राइट द डिफरेंस इन द डिफरेंस फॉर्म ओनली. मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है ये डिफरेंस, ठीक है. वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस ही दिया है और डिफरेंस के फॉर्म में ही ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एक्सप्लेन किए हैं. और नीचे वहाँ पे नीचे केमिकल इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो वो वीडियो देखना और उसको पॉज करके वो डिफरेंस कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में. आफ्टरवर्ड लेट्स रिकॉल एक्सरसाइजेज देयर दैट यू विल डू बाय योर ओन. ये आपका होमवर्क है और पेंसिल से करना है, और ईच एंड एवरी आंसर यू विल गेट फ्रॉम द चैप्टर. तो फॉर दिस यू हैव टू रीड द चैप्टर. आफ्टर दैट लेट्स ऑब्जर्व एक्सरसाइजेज देयर. तो उसमें आपको क्या दिया है, यू हैव टू लेबल द डायग्राम यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. तो ओवर हियर यू आर गिवन हेल्प बॉक्स, and by using that help box you have to label the diagram. So if you wish you can refer page number 136 for the reference. Then next is second that is what is shown in the picture. तो यहाँ पिक्चर आपको दिखाया है, तो वो कौन सा पिक्चर है, तो it is of stomata. Then draw arrows to show how the exchange of gases taking place. तो उसमें जैसे मैंने एरो किया है ना, वैसे ही आपको सिंपल एरो दिखाना है, मगर पेंसिल से सब कुछ करना है इधर. Then next is
राइट द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट वुड टेक प्लेस हियर। तो ये इक्वेशन लिख दो, शुगर प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रॉम लेट्स कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि राइट एन autobiographical account of how a fish respire in water. You could use the keywords given below and start it as I am Remo, I live in dash. मतलब you have to imagine yourself as fish and you have to complete this autobiography by your own. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा I live in water, फिर उसके बाद क्या है, तो आप लिखो गिल्स का यूज़ करके कि I have gills as a respiratory organ. These gills are acting as a slits. These gills are made up of large number of thread-like structures called filaments. These filaments are wrapped by the fine networks of capillaries. When water is flown through our mouth, at that time it reaches to this filament, and then over there diffusion is taking place through the capillaries. At that time oxygen diffuses inside the blood and carbon dioxide diffuses outside the blood, and that carbon dioxide is mixed up with the water and act as a dissolved form of carbon dioxide. ठीक है, तो ऐसे आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। अभी ये आप टेक्स्ट बुक में नहीं लिख सकते हो, तो आपको ये आंसर लिखना है फेयर नोटबुक में। एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दो, फिर बाद में ये एक्सरसाइज आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इज लेट्स अप्लाई एक्सरसाइज। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन दैट पंखुड़ी बिलीव्स दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर वन एंड द सेम थिंग। शी सेज दैट दे आर द सेम प्रोसेसेस एज बोथ इन्वॉल्व ऑक्सीजन। इज शी राइट? क्या वो सही है? नो। तो पहले आपको नो लिखना है, और इसका भी आंसर यहाँ पे आप नहीं लिख पाओगे, इट वॉन्ट फिट ओवर हियर। तो आप इसको और इसके नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, ये सारे आंसर्स आप फेयर नोटबुक में ही लिखना। So here you have to write that breathing is a mechanical process which involves inhalation and exhalation process, while respiration is a chemical process which is done inside the cell to liberate the energy. This is what the answer you need to write. Then second question is a baby frog breathes through gills while an adult frog breathes through lungs and moist skin. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बेबी फ्रॉग विच इज़ नॉन एज टेडपोल, उसका नाम क्या है? टेडपोल। इट लिव्स इन वाटर, सो दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जब भी फ्रॉग मतलब जब भी बेबी फ्रॉग होता है, टेडपोल स्टेज में होता है, तब उसके पास गिल्स होते हैं। बट एज इट इज़ बिकमिंग एडल्ट, दैट गिल्स आर कन्वर्टेड इनटू लंग्स। ठीक है, वो गिल्स डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह पे लंग्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है दिस टेडपोल लिव्स इन वाटर ओनली, दैट इज वाई दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स, बट व्हेन द सेम टेडपोल ग्रोज इनटू एडल्ट, एट दैट टाइम it live in water as well as it will live on land also. So when it is living inside the water, at that time it will respire through their moist skin, and when they are on the land, at that time they respire through the lungs. ठीक है, this is what the answer you have to write. Then next is let's analyze and evaluate exercise. तो उसमें आपको एक डायग्राम दी है, देखो ये potted plant है, तो you have to look at this rose plant. It is kept outside and it is watered regularly. अभी आपको कंडीशन दी है कि लीफ 1 करके जो आपको इंडिकेट किया है, दैट इज कोटेड विद द वैसलिन ऑन इट्स अंडर साइड, वाइल लीफ 2 इज हाफ कवर्ड विथ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है दैट एनालाइज एंड प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू लीफ 1 आफ्टर फ्यू डेज. तो अभी ये इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी एक्टिविटी टू प्रूव दैट स्टोमाटा इज रिक्वायर्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन केस ऑफ प्लांट्स. तो वो एक्टिविटी याद करो तो आपको इसका आंसर याद आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इट विल डाई बिकॉज स्टोमाटा आर कवर्ड, सो नो रेस्पिरेशन कैन बी टेकिंग प्लेस, एंड विदाउट रेस्पिरेशन नो एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनर्जी दैट लीफ विल डाई. Then second question is evaluate which part of the leaf 2 will show positive result when tested for starch. Explain why. तो अभी देखो लीफ 2 में आपको क्या बोला है कि it is half covered with a strip of black pepper. मतलब एक लीफ है उसमें से आधा लीफ कवर किया है, आधा लीफ नहीं कवर किया है. अभी जो लीफ को कवर किया है that covered part cannot go for the photosynthesis process, so they cannot prepare starch. But the part which is not covered that can go for the photosynthesis and they can prepare starch. So the part which is not covered
that is having starch content and it will show positive result for starch. So this is what your answer. Understood? This is what the exercise you have to do completely. Then next is let's remember exercise, जो कि ये एक्सरसाइज आपको दी है ऑन पेज नंबर 134. उसमें क्या है कि आपको मैच करना है एंड रीज़न देना है हर एक मैच के लिए. तो फर्स्ट कॉलम में जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया है कि ब्रीदिंग है, तो उसके ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, दैट इज़ व्हाट द रीज़न. देन सेकंड इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में सामने क्या आएगा, तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, तो उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट रिलीजेज एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. Then third is unicellular organism, तो unicellular organism will respire through the diffusion process, तो वो उसमें करेक्ट आंसर है F. तो उसका रीज़न क्या है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 diffuses out and diffuses in respectively, मतलब ऑक्सीजन will diffuses in and कार्बन डाइऑक्साइड will diffuses out. Then fourth one is spiracles, तो spiracles are what, these are there in the tracheal tubes, तो उसमें आपके उसके सामने आप रीज़न क्या लिखोगे कि these are the pores through which air enters into the tracheal tube. Then next is gills, तो gills are what, तो these are the made up of filaments, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि gills are made of large number of filaments. Then last is lungs, so lungs are what, sac like spongy organ which is the respiratory organ for most of the mammals. ठीक है, understood this? Like this way you have to write down the reason for each of the match. Then next is another let's remember exercise which is given on page number 139. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि label the parts of the human respiratory system, तो यहाँ पे आपको label करने हैं, तो you can refer page figure number 9.3 for the labeling. Then the another exercise on the next page is you have to identify who am I. तो first one, I am also known as the chest, तो उसमें correct option है thorax. I protect the lung, तो उसमें answer है rib cage. I am a dome shaped muscle that helps to pump air inside and outside the chest, so that is what, diaphragm. I am also known as the windpipe, that is trachea. And I am an airbag in the lungs where the exchange of gas is taking place, तो उसमें answer है alveoli. Understood this exercise? This let's remember exercise you can solve inside the given space into the textbook only with the help of pencil. ठीक है, I hope this concept is clear to you. Watch video 2 or 3 times to understand it more better way. And write it down into your fair notebook properly, each and every question. So please keep learning and stay healthy. Thank you all.